So hello everyone, welcome back to this new vlog, a day in my life slash study with me. In this vlog, you will actually study and learn with me. Some important insight into neurology part of medicine, important somewhat for NEET UG students as well as PG too, that is my MBBS mates. So till the end of this video, I bet you will gain something out of this with concepts as smooth as butter. In case you don't know me yet, I am Pratik Nayak, currently a third year MBBS student at AIMS Nagpur. And in case you haven't subscribed, kya yaar, hit that subscribe button now or you will really miss on a lot of things. Because I don't only make vlogs but also intend to provide some value out of it. So let's begin. हेलो एवरीवन, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्टडी विथ मी। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था डे इन माय लाइफ, जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बट साथ ही कमेंट्स जो थे जो बता रहे थे कि इंग्लिश में मत बोलो अगर तुम्हें नहीं आती है तो, जो कि मुझे आती है, बट मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। बट इस वीडियो में आई हैव ट्राइड टू मिक्स इंग्लिश एज पर दिस पोल दैट यू हैव शोन दैट तुम इंग्लिश में ही बात करो, तो मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स आई विल टॉक। एंड जो ये हमारा पहला स्टडी विथ मी सेशन है, तो अगर इसमें भी कुछ तुम्हें लगे कि कुछ और चाहिए या फिर क्या चेंजेस चाहिए, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस। सो लेट्स सी हाउ प्रोडक्टिव दिस संडे goes. It was morning 9 a.m. and with the books open, I started feeling hungry. Plus, when I saw the skies, it was like they were calling me to visit outside. I gave up to the temptation and went to the breakfast. Obviously, I was late. After having breakfast, I came back to the room. We are back to our room after having our breakfast, and today, Sunday morning, I have planned to study neuro, which is CNS from medicine. So the basic plan is that I will first cover neuro from neuroanatomy, the notes which I had made in the first year itself from Ashwini Kumar, the literal lord of anatomy, and then I will proceed for the actual stroke part of medicine. So let's see how it goes. I will show you the notes which I had made in the first year itself. So I have made notes in a proper way from where I will study for today. So yeah, let's go for the study. There is also a special giveaway in this video for a hardworking and a lucky NEET aspirant. It will be based on the answer of a question that I have asked in this video itself, whose concepts also I have explained in this very video. So, if you are attentive enough to understand and grasp the concepts, the giveaway prize will be all yours. What is the prize? Well, it is a set of my marked botany modules from Akash Institute plus my botany notes that I used during my NEET preparation. So stay tuned till the end to win it. I have learned how the brain develops from a neural tube completely, and the anatomy of the spinal cord along with some cisterns of the brain. If you want to read along with me and know some important insights into the brain and the spinal cord, do watch the video from this time frame. Otherwise, you can skip the video to this time frame in order to skip the actual theory part. Let's go. First of all, the neural tube develops at the cranial end. Our body has two ends, cranial end and the caudal end. Cranial end is the head part and caudal end is the tail part of the body. So neural tube will develop at the cranial end. So cranial end पे neural tube develop होता है, and at later stages of development it will form three dilatation. This is the prosencephalon, mesencephalon and the rhombencephalon, as we all know. Now further, which is above the NEET UG level, I guess prosencephalon will give rise to telencephalon and diencephalon. These are the two vesicles. See the color code. I have used this neon color. Neon color is further giving rise to two parts, as I have shown. This prosencephalon is giving rise to two parts, telencephalon and diencephalon, whereas the mesencephalon remains as it is as mesencephalon, whereas the rhombencephalon is giving rise to this meton and myelencephalon. This is the green part, this is the green part, meton and myelencephalon. So this is the anatomy. Let's revise. First, the brain is a neural tube at the cranial end. It gives rise to three dilatations, prosen, meson and rhombencephalon, and then it further divides into brain vesicles, which are called the secondary brain vesicles. Telencephalon, diencephalon, mesencephalon, meton and myelencephalon. Let's see what happens to this telen, dien, meson, meton, myelencephalon. The telencephalon will now give rise to the whole cerebrum and the corpus striatum, and the diencephalon will give rise to what, as know the structure of the brain. Structure of brain में सबसे पहले क्या आता है? कॉर्टेक्स आता है, सेरिब्रम आता है. तो सबसे पहले जो आ रहा है सेरिब्रम एंड कॉर्पस स्ट्रैटम इज गिवन राइज बाय टीलेंसेफ्लॉन. जो डायंसेफ्लॉन है उसके बाद कौन आता है? सेरिब्रम के नीचे आता है अपना थैलेमस.
थैलेमस, थैलेमिक फैमिली, ऑप्टिक स्टॉक एंड द न्यूरोहाइपोफाइसिस। थैलेमिक फैमिली में कौन कौन आता है यहाँ पे? थैलेमस, एपिथैलेमस, सब थैलेमस, मेटा एंड हाइपोथैलेमस। अब ये है अपना डायनसिफ्लॉन, डायनसिफ्लॉन, थैलेमस, ऑप्टिक स्टॉक एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब मीटनसिफ्लॉन है, पोन्स एंड सेरिबेलम को राइज देगा, और माइलनसिफ्लॉन है, इट विल गिव राइज टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो वी नो दैट द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द कनेक्शन बिटवीन द होल ऑफ दिस ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। नीचे स्पाइनल, यहाँ ब्रेन होगा, यहाँ अपना माइलनसिफ्लॉन है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द कनेक्शन। सो दिस इज हाउ आई रिमेंबर। अब वी नो दैट जो ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है ऐसे, वेट अ मिनट, ब्रेन में वी नो दैट यहाँ पे वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स। सो उसी अकॉर्डिंग हमको याद रखना है कि जो टीलनसिफ्लॉन है, टीलनसिफ्लॉन सेरिब्रम को राइज दे रहा है। सेरिब्रम में क्या होता है? लेटरल वेंट्रिकल होता है। सो टीलनसिफ्लॉन विल गिव राइज टू सेरिब्रम प्लस द लेटरल वेंट्रिकल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेरिब्रम। Okay, so lateral ventricle, do search for Google images. This is how the lateral ventricle looks like in a cross section. सो लेटरल वेंट्रिकल को भी टीलनसिफ्लॉन राइज देता है। अब डायनसिफ्लॉन जो है वो थर्ड वेंट्रिकल को राइज देता है, इसलिए अंदर 3 लिखा है। मीटनसिफ्लॉन फोर्थ वेंट्रिकल को राइज देता है, जो पोन्स एंड सेरिबेलम में फोर्थ वेंट्रिकल्स होते हैं। और जो दोनों को कनेक्ट करता है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ, इट इज अराइजिंग फ्रॉम मीजनसिफ्लॉन। सो मीजनसिफ्लॉन विल गिव राइज टू एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। सो ये था मोटा मोटा अबाउट हाउ द ब्रेन विल फुल्ली डेवलप विद द वेंट्रिकल्स एंड द एरियाज ऑफ इट, दैट इज सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। अब हम आते हैं सिस्टर्न्स पे। सिस्टर्न्स इनको बोलते हैं, जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, सिस्टर्न, 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 सिस्टर्न। सिस्टर्न यानी स्पेसेस हैं, लिटरल मीनिंग है सिस्टर्न का स्पेसेस। सो जो सब एरेक्नोइडल स्पेस, मैंने बोला सब एरेक्नोइडल स्पेस में विलाई होता है, सॉरी CSF होता है। तो सब एरेक्नोइडल स्पेस कभी कभी बहुत बड़े होते हैं, उनको सिस्टर्न बोलते हैं। बिग सब एरेक्नोइडल स्पेसेस आर कॉल्ड सिस्टर्न्स। अब ये डिफरेंट टाइप के हैं। एक कॉर्पस कैलोजम है, ब्रेन का पूरा कॉर्पस कैलोजम, उसके ऊपर जो स्पेस है सब एरेक्नोइडल स्पेस, वो होगा कैलोजल सिस्टर्न, वो है कैलोजल सिस्टर्न, ठीक है। और हमारा ये है अपना इंटरपेडेंकुलर सिस्टर्न, ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के आगे एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं इंटरपेडेंकुलर सिस्टर्न। पॉन्स के आगे स्पेस है, पोंटाइन सिस्टर्न बोलते हैं उसका, उसका कंटेंट है बेसिलरी आर्टरी। जो सबसे बड़ा सिस्टर्न और इम्पॉर्टेंट सिस्टर्न है वो है सिस्टर्ना मैग्ना। सिस्टर्ना मैग्ना में हम ये CSF एस्पिरेट कर सकते हैं यहाँ से, और उसको फोरामेन मैग्नम भी सराउंड कर रहा है। तो अगर हमने कोई इंजेक्शन यहाँ से घुसाई तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि वो मेडुला और ये पोन्स को इंजर कर दे। इसलिए अगर हमको सिस्टर्ना मैग्ना से कभी भी CSF लेना है, सो इट शुड बी आवर लास्ट ऑप्शन टू टेक CSF पंक्चर फ्रॉम हियर, बिकॉज इट हैज़ हाई चांस टू डैमेज मेडुला। जो रेस्पिरेटरी सेंटर और जो मेजर सेंटर्स होते हैं पोन्स और मेडुला में, वो पूरे डैमेज हो जाएंगे। इसलिए बहुत रेयरली हम ये इंसर्ट करके CSF लेने के लिए इंसर्ट करते हैं। फिर है हमारा ये सुपीरियर सिस्टर्न। सुपीरियर सिस्टर्न क्यों बोलते हैं? सेरिबेलम के सुपीरियर है इसलिए सुपीरियर सिस्टर्न बोलते हैं। उसमें वेन ऑफ गैलेन होता है और ये 4 न्यूक्लियस होते हैं जो जेम्स जैसे दिखते हैं। वो विजन एंड हियरिंग में हेल्प करते हैं। कॉलिकुलस बोलते हैं इनको, सुपीरियर कॉलिकुलस, इन्फीरियर कॉलिकुलस, 2 यानी 4, इसलिए क्वाड्रीजेमिनल सिस्टर्न भी बोलते हैं इसको। अदर इंपॉर्टेंट सिस्टर्न्स आर लाइक समवॉट हियर गिवन। सिल्वियन सिस्टर्न, सिल्वियन सिस्टर्न तुमको पता होगा, सिल्वियन सल्कस, सिल्वियन सल्कस ब्रेन में ऐसे रन करता है, उसके लॉन्ग सिल्वियन सिस्टर्न होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मिडल कैरोटिड आर्टरी होती है इधर, इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ सिल्वियन सल्कस। सो दिस द इंटरपेडेंकुलर सिस्टर्न मैंने बताया था, इंटरपेडेंकुलर सिस्टर्न। सो ये था अपने सिस्टर्न के बारे में जो हमने पढ़ा। अब ये जो मिड ब्रेन का सेक्शन है, एक मिड ब्रेन को तुम ऐसे काटोगे ऐसे, तो फिर मिड ब्रेन का सेक्शन दिखेगा, उसको हम सेरिब्रल पेडंकल, मिड ब्रेन में हम सेरिब्रल पेडंकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेरिब्रम से जो फाइबर्स आएंगे वो मिड ब्रेन से ऊपर से आ रहे हैं फाइबर। जैसे देखो ये तुम्हारा सेरिब्रम है, ये तुम्हारा टिप है, मिड ब्रेन है। तो सेरिब्रम से लेके मिड ब्रेन तक नर्व के फाइबर्स तो रन करेंगे ना, ऐसे ऊपर से नीचे बॉडी में नर्व निकलते कहाँ से? ब्रेन से निकल रहे हैं, कॉर्टेक्स से, और नीचे रन कर रहे हैं। तो नीचे रन करते करते मिड ब्रेन से नर्व फाइबर्स पास होंगे जो सेरिब्रम के फाइबर्स हैं, बट यहाँ से पास हो रहे हैं, इसलिए उनको यहाँ एलिवेट हो जाएगा वो फाइबर के वजह से। मिड ब्रेन में जो पार्ट है जो मैंने ये हाईलाइट किया है, इसको बोलेंगे सेरिब्रल पेडंकल। नेक्स्ट जो हमने आज पढ़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, वो था स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ पढ़ा 40 to 45 सेंटीमीटर, एक अंदाज़ा ले सकते हैं मेल और फीमेल में। मेल में बड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड, फीमेल में छोटा होता है। वेट 30 to 35 ग्राम है। एक्सटेंट क्या है? एक्सटेंट है C1 to अपर बॉर्डर ऑफ L3 इन केस ऑफ न्यूनेट्स। बच्चों में C1 से L3 तक होता है, जबकि एडल्ट्स जो हैं उनमें होता है C1 से L1। C1 से L1, इसका मतलब क्या ये हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड एडल्ट्स में छोटा हो गया? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जो एडल्ट्स
जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनका जो वर्टिब्रल कॉलम भी ऐसे बड़ा होता है, जबकि नियोनेट्स का छोटा होता है तो उनका स्पाइनल कॉर्ड भी उतना L3 तक जाता है। अब बड़े होते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड का लेवल तो नहीं बढ़ रहा, उतना ही है। तो जैसे जैसे वर्टिब्रे नीचे जा रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ उतना ही रह रहा है, लेकिन वर्टिब्रे नीचे गए तो इमेजिन करो जो L3 ऊपर था वो नीचे आ गया, तो अब L1 आ गया, तो L1 के अपर बॉर्डर। सो एडल्ट्स में C1 से L1 होता है, जबकि न्यूनेट्स में C1 to L3 होता है स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटेंट। ठीक है। सो स्पाइनल कॉर्ड कोई ऐसा सिलेंडर टाइप नहीं है, वो बहुत नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। ये स्पाइनल कॉर्ड है अपना, इसमें होता है सेरिब्रल, एक सर्वाइकल एनलार्जमेंट और दूसरा लंबर एनलार्जमेंट। सर्वाइकल एनलार्जमेंट स्पाइनल सेगमेंट C3 to T2, लंबर एनलार्जमेंट स्पाइनल सेगमेंट L1 to S3। ये कैसे याद किया मैंने, CTLS याद किया है, 3213 CTLS जैसे हमारे ट्रॉमा में होता है ATLS, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, वैसे मैंने याद किया CTLS। C3 to T2 जो है वो अपना सर्वाइकल एनलार्जमेंट है स्पाइनल कॉर्ड में, और जो LS यानी L1 to S3, यहाँ है 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। सो ऐसे मैंने कुछ याद किया है, C3 to T2, L1 to S3, लंबर एनलार्जमेंट, सर्वाइकल एनलार्जमेंट। अब हमने पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 तक होता है। तो L1 के नीचे जितने भी नर्व फाइबर निकल रहे लंबर प्लेक्सस से, वो हमारे बनेंगे कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा इक्विना यानी लाइक द टेल ऑफ द हॉर्स, सो इट इज़ लाइक द कॉर्डा इक्विना, and it is covered along its whole extent. The spinal cord is covered along its whole extent by the dura mater and the arachnoid mater, and it extends here also. But the pia mater, ये जो black है ये है pia mater. Pia mater runs below the spinal cord also until the coccygeal vertebrae, and here it is called the phylum terminale. So this was about dura, arachnoid and pia mater. ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर अपना पूरा स्पाइनल कॉर्ड के अलॉन्ग है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। हमको पता है कि पाया मैटर ब्रेन के साथ रन करता है, सबसे क्लोज लेयर है वो पाया मैटर है, तो ब्रेन से आते आते स्पाइनल कॉर्ड को पूरा कवर कर रहा है। पाया मैटर यहाँ तक जा रहा है कॉकिक्स तक और अपना प्रोटेक्शन देते हुए, और ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर यहाँ पे एंड हो रहे हैं अपने S2 पे। सो दिस इज़ अबाउट द कवरिंग। यहाँ L1 के लोअर बॉर्डर पे ये ख़त्म हो रहा है अपना स्पाइनल कॉर्ड। सो जो L1 के लोअर बॉर्डर पे ख़त्म हुआ स्पाइनल कॉर्ड, उसके नीचे हम स्पाइनल कॉर्ड को बिना इंजर के यहाँ इंजेक्शन घुसा के हम CSF पंक्चर कर सकते हैं, लंबर पंक्चर कर सकते हैं और CSF निकाल सकते हैं यहाँ से। L1 से S2 इज़ द सेफ स्पेस वेयर यू कैन एस्पिरेट द CSF फ्रॉम, बिकॉज यहाँ पे इंजेक्शन मारा तो स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी नहीं होगा। बट द प्रीफर्ड साइट इज़ बिटवीन L3 एंड L4, बिकॉज एज के साथ S2 और L5, इसके ऊपर L5 होगा, S2 के ऊपर L5 का सेक्रलाइजेशन हो जाता है, यानी L5 वर्टिब्रा है वो S2 के साथ फ्यूज़ हो L5 S1 के साथ फ्यूज़ हो जाता है, सॉरी L5 और S1 फ्यूज़ हो जाते हैं, और दिस कॉल्ड सेक्रलाइजेशन ऑफ द लंबर वर्टिब्रे। तो वहाँ तो इंजेक्शन घुसेगा ही नहीं, मानो कि यहाँ 2 बोन फ्यूज़ है तो यहाँ से मैं कहाँ इंजेक्शन घुसाऊँ, नहीं घुसेगा। सो द बेस्ट स्पेस इज़ L3 एंड L4, वहाँ इंजेक्शन घुसा के हम CSF ले सकते हैं लंबर पंक्चर के लिए। Now we come to the modifications of the pia mater. तो pia mater is the lower end of the spinal cord। जो pia mater पूरा spinal cord के लॉन्ग रन कर रहा था वो give rise to phylum terminale। ये एक टर्मिनल एंड बन जाएगा pia mater का, जिसको बोलेंगे phylum terminale। ये पूरा pia mater है। अब जो ये हमने देखा था ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर जो स्पाइनल कॉर्ड को पूरा कवर कर रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड था, इसको ड्यूरा और एरेक्नोइड कवर कर रहा है। सो ड्यूरा और एरेक्नोइड जिस पार्ट को कवर कर रहा है वो फाइलम टर्मिनल जो है पूरा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। दिस इज़ द फाइलम टर्मिनल इंटरनल, दिस इज़ द फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नल। ठीक है, फाइलम टर्मिनल इंटरनल इज अंडर द ड्यूरा एंड एरेक्नोइड कवरिंग, जबकि जो बाहर है ड्यूरा एंड एरेक्नोइड का कोई कवर नहीं है, फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नल है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ द पाया मैटर विच इज़ लीनिया स्प्लेंडेंस। ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है, उसके पूरा अलॉन्ग वी नो दैट पाया मैटर रन कर रहा है। पीछे स्पाइनल कॉर्ड में जगह नहीं है, बट आगे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जगह है, उसको बोलते हैं एंटीरियर फिशर। उसमें पूरा पाया मैटर घुस जाता है, जैसे ये घुस गया पाया मैटर तो पूरा ग्लिसनिंग वाइट। पाया मैटर एक कवरिंग है, तो कवरिंग जैसे एक जगह में घुसेगा तो कैसा स्प्लेंडेड अपीयरेंस देगा, इसलिए वाइट ग्लिसनिंग स्प्लेंडेड अपीयरेंस देता है, इसको बोलते हैं लीनिया स्प्लेंडेंस। ठीक है, वो एक कवरिंग है, बस इसका भी इतना ही एक्सप्लेनेशन है। और जो तीसरा है वो है इम्पॉर्टेंट लिगामेंटम डेंटिकुलेटम।
पायामेटर स्पाइनल कॉर्ड के अलॉन्ग रन कर रहा है, वो स्पाइक्स बनाता है, डेंटेट स्पाइक्स, यानी दांत के जैसे स्पाइक्स, पॉइंटेड स्पाइक्स बनाता है, इसलिए उसको बोलते हैं लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। अब तुमको लग रहा होगा ये सारे लिगामेंटम डेंटिकुलेटम है, नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लिगामेंटम डेंटिकुलेटम दो ही हैं, एक ये राइट एंड लेफ्ट, दो लिगामेंटम डेंटिकुलेटम है, और इनमें 21 प्रोजेक्शंस हैं टोटल में पूरे लिगामेंटम डेंटिकुलेटम में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पीजी के लिए कि दो ही लिगामेंटम डेंटिकुलेटम होते हैं और टोटल 21 प्रोजेक्शन होते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है ये लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, ये रहा पूरा पॉइंटेड स्पाइक के जैसा। अब टेबिस डॉर्सलिस या फिर अपना पोलियोमाइलाइटिस, हमको ट्रांसवर्स हेमी सेक्शनिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड करना पड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड को बीच से काटना पड़ता है, तो हम उसके लिए ये लैंडमार्क को यूज़ करेंगे विच इज़ लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सर्जिकल लैंडमार्क। अगर हमको पोस्टीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को काटना है तो हम लिगामेंटम डेंटिकुलेटम के आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि लिगामेंटम डेंटिकुलेटम के पीछे ही पोस्टीरियर कॉलम है। जबकि अगर हमको एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में कुछ काम करना है तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो सर्जिकल नाइफ हो वो यहाँ नहीं जाए, क्योंकि यहाँ के ट्रैक्ट्स को फिर नुकसान होगा। इसीलिए हम ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है पायामेटर का, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, जो हम यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज इट। So after finally completing our first study session, now we will learn about the different tracts of our body. Tracts क्या है, जो ब्रेन से निकलते हैं या फिर जो पेरीफेरी से आते हैं ब्रेन की तरफ, नर्व फाइबर्स, वो बंडल में जाते हैं ब्रेन की तरफ या फिर बंडल से निकलते हैं ब्रेन से, एंड दे हेल्प इन ऑल दिस मोटर मूवमेंट्स। मैं जो हाथ चला रहा हूँ, मैं जो पाँव चला रहा हूँ, या फिर मैं जो बोल भी रहा हूँ, वो सब कोऑर्डिनेटेड है ब्रेन में। कहीं ना कहीं उसके सिग्नल्स निकल रहे हैं और यहाँ तक पहुँच रहे हैं या यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जिससे ये मेरी मूवमेंट्स हो पा रही हैं। सो I have already done it in the first year. Now I will revise it for now in the neuroanatomy section, and then after this 2 to 3 hour study session we will move towards our lunch, and then we will come back to start the neuroanatomy again. So this is my plan for this next session, so let's begin. And for your information, this video is not as long as it looks. It looks actually 45 minutes long, but it is originally only 15 minutes long. If you don't want to learn anything with me but just watch it, just like other YouTube videos which depict study with me. But if you really want to learn something today, these 45 minutes will be worth your time, believe me. And you will surely gain something out of this video instead of passively watching it. Based on the concept that I have learned in this second study session, I will be asking you the question for the giveaway. So be very attentive for the next part of the explanation that I will be giving you for the question of the giveaway. And this study session comes to an end. So we are done with the second study session, and in this study session हमने पढ़ा spinothalamic tract, हमने पढ़ा dorsal column tract, हमने पढ़ा different sensations carried by this tract, how do they travel along the spinal cord to the brain through the thalamus, what do not travel through the thalamus. This is a question for you. Stay tuned in this video and do answer in the comments what is the answer. All the tract of the body, while passing and taking sensations from the different parts of the body, they pass through the thalamus. Thalamus is the gatekeeper of sensation. Thalamus से pass होंगे तभी कोई information ऊपर जाएगा cortex तक. But there is one sensation in our body which does not pass the thalamus but directly passes the information into the cortex. Do comment in the comment section what is that one sensation. I will be talking about it in upcoming timestamp. About this thing only, do note it seriously. You will get to learn something as well, and this is an important question that can be asked in your PG as well. So let's study what I read in the second study session. तो जैसा कि मैंने कहा, हमने पढ़ा ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये डायग्राम तुमको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। कोई भी सेंसेशन आएगी हमारे पास, पेन, टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, स्टीरियोग्नोसिस या फिर प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन यानी तुमको पता है कि तुम्हारी जॉइंट स्पेसेस कहाँ हैं, तभी तुम खड़े हो पाते हो या बैठ पाते हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो कोई भी सेंसेशन आएगा सबसे पहले वो जाएगा नर्व्स के थ्रू। बॉडी में नर्व्स होते हैं, कोई सेंसेशन आएगा नर्व्स के थ्रू जाएगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट गैंग्लियन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है। फर्स्ट ऑर्डर यानी ऑर्डर में फर्स्ट आ रहा है, ये पूरा पाथवे एक ऑर्डर है। तो उसमें सबसे पहला ऑर्डर किसका है, इसका। ये पहला ऑर्डर देगा और जाएगा पूरे पाथवे के थ्रू कॉर्टेक्स अपने ब्रेन तक। तो इसके लिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। सो डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज ऑलवेज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इन द कैरिंग द सेंसेशन ऑफ द बॉडी। सो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से कोई सेंसेशन आया, उसने नर्व दिया। नर्व जो जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है एक न्यूक्लियस को, और जो न्यूक्लियस है, अब ये इस साइड ऐसे भी ऊपर जा सकता था, बट
न्यूक्लियस से जो फाइबर निकलते हैं वो क्रॉस करते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड का मिड लाइन है, ये जो तुमको दिख रहा होगा मिड लाइन क्रॉस करके ऊपर जाते हैं इन्फॉर्मेशन लेके थैलेमस में जाते हैं। थैलेमस में अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं। जब ये फाइबर गया, इसने ये इन्फॉर्मेशन इस न्यूक्लियस को दिया, ये न्यूक्लियस ये इन्फॉर्मेशन लेके अब ब्रेन तक जाएगा। सो ऐसे पासिंग द इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन को पास कर रहे हैं। जैसे हम बचपन में खेलते थे पासिंग द पास, वैसे ये इन्फॉर्मेशन को न्यूक्लियस के थ्रू, ट्रैक्ट्स के थ्रू पास करते हैं और ऐसे हमें कुछ फील होता है। सो डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, इट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फॉर एनी असेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है पूरा इन्फो, इसीलिए इसको हम असेंडिंग ट्रैक बोलते हैं। सो ये हमने पढ़ा डॉर्सल रूट गैंग्लियन। और अगर हमको राइट साइड का कोई इन्फॉर्मेशन है, वो हमेशा देखो क्रॉस हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड लेफ्ट साइड, तो राइट साइड का इन्फॉर्मेशन हमेशा लेफ्ट साइड से ऊपर जाता है ब्रेन में, और लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रही है, और जो राइट साइड ऑफ ब्रेन है वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रही है। तो ये था। अब मैंने न्यूक्लियस की बात की थी तुम्हें। सो न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूक्लियस जो है वो नर्व फाइबर्स को अराइज देते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो नर्व फाइबर्स को लेते भी हैं। तो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस अलग अलग सेंसेशन को लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये है हमारा पोस्टीरियर और ये है एंटीरियर। एक तुमको ओरिएंटेशन कि ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है हमारी बॉडी का। मानो कि ये आदमी का आगे का है, आदमी के पीछे का है। तो पीछे हमारे पास ये इतना पार्ट पीछे का पार्ट है, तो पोस्टीरियर कॉलम में अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं। ये है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा न्यूक्लियस, रेड कलर का, मतलब मैंने रेड बनाया। और ये है न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ये है न्यूक्लियस डॉर्सलिस, ये है अपना वेंट्रल एफरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये अलग अलग न्यूक्लियस अलग अलग सेंसेशन को कैरी करते हैं। जैसे ये अपना जो है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा जो न्यूक्लियस है, वो पेन, टच एंड टेम्परेचर को बॉडी में कैरी करता है फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द अबव लेवल्स इन द कॉर्टेक्स। जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस कैरीज कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन यानी तुम चल रहे हो तो तुमको पता है कि अगला पाँव कहाँ रखना है, कितने फुट के बाद रखना है, कितने टाइम पे रखना है, कितना स्टेप हमको ऊपर उठा के उसको रखना है। कॉन्शियसली तुम्हें पता चल रहा है कि तुम अपने जॉइंट को कहाँ मूव कर रहे हो, उसको कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं। वो ये न्यूक्लियस प्रोप्रियस संभालता है। अब ये न्यूक्लियस डॉर्सलिस है, ये वाला न्यूक्लियस डॉर्सलिस अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। तुम बैठते हो तो क्या तुम्हें सोचना पड़ता है कि तुम कैसे बैठ रहे हो? क्या तुम खड़े होते हो तो तुम्हें सोचना पड़ता है कि कैसे खड़े हो रहे हो? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ध्यान रखती है कि तुम्हारा जॉइंट कहाँ है जो तुम्हें खड़े रहने में फैसिलिटेट करे, वो ये न्यूक्लियस डॉर्सलिस ध्यान रखता है। अगर कोई डैमेज हो गया तो तुम सही से खड़े नहीं रह पाओगे। फिर यह है विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, जैसे कि नाम में है विसरल एफरेंट, विसरा यानी विसरा से एफरेंट लेता है, एफरेंट यानी सेंसेस लेता है और ट्रांसमिट करता है। सो जो अपने ऑर्गन है स्टमक, लिवर, वो सब से ये सेंसेस लेगा और उस सेंसेस को रिले करेगा बॉडी में। अब ये है लेटरल कॉलम, ये है पोस्टीरियर कॉलम, ये है लेटरल कॉलम, ये है एंटीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का, जितना भी मैंने हाईलाइट किया ग्रे मैटर है, ये पूरा बाहर वाला वाइट मैटर है। न्यूक्लियस ऑफ द लेटरल हॉर्न, और ये एंटीरियर हॉर्न के न्यूक्लियस है, लेटरल, मीडियल और इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। लेटरल न्यूक्लियस, इंटरमीडिएट न्यूक्लियस, मीडियल न्यूक्लियस। अब लेटरल न्यूक्लियस क्या करता है? लेटरल न्यूक्लियस एल यानी लेटरल, एल यानी लिम्स। ये जो आगे हैं, आगे से फाइबर ऐसे निकलते हैं हमेशा स्पाइनल कॉर्ड से, तो ऐसे मैंने याद रखा कि जितने फाइबर निकलेंगे आगे से निकलेंगे तो ये बॉडी को सप्लाई करेंगे, तो हमेशा मोटर होंगे। तो आगे के न्यूक्लियस मोटर है सारे, पीछे ऐसे घूम के आएंगे बॉडी से, पीछे सेंसरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आगे के न्यूक्लियस सारे मोटर है, पीछे के न्यूक्लियस सारे सेंसरी हैं। तो ये जो लेटरल न्यूक्लियस है, एल यानी लिम्स को मोटर सप्लाई देता है। एम यानी मीडियल न्यूक्लियस, एम से मिडलाइन मसल्स को सप्लाई करता है, जैसे मिडलाइन मसल यानी इंटरकोस्टल मसल को मोटर सप्लाई देता है। और जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस है, फ्रेनिक न्यूक्लियस एज वेल एज स्पाइनल एक्सेसरी न्यूक्लियस, वो डायफ्राम को मोटर सप्लाई देता है, और स्पाइनल एक्सेसरी न्यूक्लियस जो सर्वाइकल रीजन में उसको मोटर सप्लाई देता है। नाउ आई विल शो यू द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ द बॉडी। जो हमने पढ़ा था ये ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में न्यूक्लियस होते हैं अपने सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, देन न्यूक्लियस प्रोप्रियस, न्यूक्लियस डॉर्सलिस, लेटरल हॉर्न न्यूक्लियस, देन लेटरल, इंटरमीडिएट एंड मीडियल न्यूक्लियस। ऑल ऑफ देम carry some special type of sensation from the sensory organs to the cortex at above level. बट अगर सेक्शन करेंगे स्पाइनल कॉर्ड का, ऐसा मानो ये स्पाइनल कॉर्ड था, हमने सेक्शन कर दिया, तो हमने जो यहाँ न्यूक्लियस देखे, ये न्यूक्लियस फाइबर्स को राइज देंगे ना, फाइबर्स विल गो अप थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। सो उसको अगर हम ट्रैक करें तो स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉस सेक्शन में ऐसे दिखेंगे।
this is the posterior column of the spinal cord, this is the lateral column of the spinal cord, and this is the anterior column of the spinal cord. The posterior column of the spinal cord carries the sensation of fine touch, vibration, proprioception. The lateral column of the spinal cord will carry information to the cerebellum. This cerebellar tracts are there. And the anterior horn of the spinal cord, anterior column of the spinal cord will carry the sensation of pain, touch, temperature from the sensory organs to the cortex. We will study about it. सो ये है फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटिस. फेसिकुलस यानी ट्रैक्ट, फेसिकुलस ट्रैक्ट को फेसिकुलस ही बोलते हैं. ग्रेसिलिस, वी नो दैट ग्रेसाइल मसल इज प्रेजेंट इन द काफ. सो ये जितने भी सेंसेशन है, पोस्टीरियर कॉलम कौन से सेंसेशन कैरी कर रहे थे? पोस्टीरियर कॉलम वर कैरिंग द सेंसेशन ऑफ फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन. So all this sensation from the lower limb will be carried by fasciculus gracilis to the cortex, and all the sensation of the fine touch, proprioception, vibration from the upper limb will be carried by fasciculus cuneatus towards the cortex. Then we have dorsal spinocerebellar tracts and ventral spinocerebellar tracts. So spinocerebellar, cerebellum का जो main function है वो है unconscious proprioception, यानी we know where our joints are in space without even थिंकिंग अबाउट दैम. वी नो दैट हम कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े, बिकॉज ऑफ सेरिबेलम. सो ये दोनों जो ट्रैक्ट्स हैं वो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन में हेल्प करते हैं. आई विल शो यू द ट्रैक्ट इन डिटेल. एंड जो लेटरल एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, इट कैरीज द सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू द कॉर्टेक्स, whereas the anterior spinothalamic tract carry the sensation of crude touch as well as pressure from the sensory organ to the cortex. So we will first read about spinothalamic tract. Spinothalamic tract, now I will show you the beauty of the body, how the sensations are carried in fractions of second to the cortex through a very complex pathway. See, the senses, अगर कोई सेंस आया वो सबसे पहले डॉर्सल रूट गैंग्लिया में जाएगा. सेंस जैसे पेन टच टेम्परेचर है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का मेन काम है पेन टच टेम्परेचर कैरी करना. सो इट विल कैरी पेन टच एंड टेम्परेचर फ्रॉम, पेन टच एंड टेम्परेचर कहाँ से? सेंसरी ऑर्गन से कैरी करके डॉर्सल रूट गैंग्लिया, हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, उस पर जाएगा. अब डॉर्सल रूट गैंग्लिया से मैंने कहा था सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा पेन टच टेम्परेचर को कैरी करता है, वो मेन न्यूक्लियस है जो इसको सेंस करेगा. तो पेन टच टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्रूड टच, ये याद रखना क्रूड टच है, नॉट फाइन टच. फाइन टच हमारा डॉर्सल कॉलम कैरी कर रहा था. तो क्रूड टच, पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है डॉर्सल रूट गैंग्लिया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा को देगा. अब सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के पास पेन टच टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन आया. अब वो अपोजिट साइड जा रहा है, ये हमारा मिड लाइन है. अब अपोजिट साइड जा रहा है, अपोजिट साइड जाके दो ट्रैक्ट्स दे रहा है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. जब कोई फाइबर अपोजिट साइड को क्रॉस करता है हम उसको लेमनिस्कस बोलते हैं, लेमनिस्कस. तो ये है हमारा स्पाइनल, ये हमारा मीडियल लेमनिस्कस है, ये हमारा स्पाइनल लेमनिस्कस, इसको नाम दिया. जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो हमारा स्पाइनल लेमनिस्कस बनाएगा, जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो मीडियल लेमनिस्कस बनाएगा. पेन टच टेम्परेचर आया यहाँ से, उसने न्यूक्लियस को इन्फॉर्मेशन दिया, न्यूक्लियस से फाइबर निकले अपोजिट साइड गए, उसने दो ट्रैक्ट बनाए, दो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. अब ये दोनों ऐसे ऊपर जाएंगे थैलेमस को. थैलेमस हमारा गेट कीपर है, कैसे जा रहे हैं? मेडुला पोन्स मिड ब्रेन से पास होके जा रहे हैं. अब गेट कीपर के पास इन्फॉर्मेशन जाएगा. अब थैलेमस में न्यूक्लियस है जिसको हम बोलते हैं वीपीएल न्यूक्लियस. वीपीएल न्यूक्लियस यानी वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस, उसको इन्फॉर्मेशन देगा पेन टच टेम्परेचर को. अब ये थैलेमस से फाइबर्स निकलेंगे जिनको बोलेंगे थैलेमिक रेडिएशन, जो पेन टच टेम्परेचर को ट्रांसमिट करेंगे प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ एरिया नंबर 1, 2, 3 इन द ब्रेन. तो सोचो तुम अगर किसी चीज़ से तुमको पेन हो रहा है या तुमने गर्म चीज़ छू ली, कितने मिली सेकेंड्स, कितने माइक्रो सेकेंड्स में ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाता है तुरंत सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एरिया, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया नंबर 1, 2, 3 को. दिस इज़ हाउ अमेजिंग बॉडी इज़ एंड दिस इज़ वाई MBBS interests anyone if you are curious enough to know. सो ये मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको लिखा है. सेंसरी ऑर्गन्स है डॉर्सल रूट गैंग्लिया, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा न्यूक्लियस को जाता है, क्रूड टच एंड प्रेशर एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में जाएगा, पेन एंड टेम्परेचर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में जाएगा. ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट स्पाइनल लेमनिस्कस बनाता है, ये रहा, और जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट मीडियल लेमनिस्कस बनाता है, ये रहा. और ये जाएगा वीपीएल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस को, और फिर थैलेमिक रेडिएशन से जाएगा कॉर्टेक्स के एरिया नंबर 1, 2, 3 को. ठीक है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, तो फिर ये हमारे जो लेमनिस्कस है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद हम आते हैं डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट. मैंने क्या बोला था, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट जो हैं वो कैरी द सेंसेशन ऑफ फाइन टच, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन
फाइन टच, यानी एकदम फाइन टच तुम्हें पेन पकड़ना है तो तुमको पता है कि उसको कैसे पकड़ना है लिखने के लिए, तो वो सेंसेशन कैरी करेंगे हमारे पोस्टीरियर कॉलम के ट्रैक्ट्स। एंटीरियर कॉलम का ट्रैक्ट हमने अभी पढ़ा ना, ये एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड लेटरल एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब पोस्टीरियर कॉलम में है फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस। ग्रेसिलिस लोअर लिम, देखो लोअर लिम हमारे बॉडी में अगर तुम खड़े रहो तो लोअर लिम ऐसे बीच में आता है, तो मैंने याद रखा कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस का जो ट्रैक्ट है वो मीडियल है, फेसिकुलस क्यूनिएटस का जो ट्रैक्ट है वो लेटरल है, इसलिए फेसिकुलस क्यूनिएटस, हाथ हमारे थोड़े लेटरली रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो फेसिकुलस क्यूनिएटस लेटरल है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस मीडियल है। तो कोई भी सेंसेशन आएगा हमारे पास फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रेशर या स्टीरियोग्नोसिस का, वो सबसे पहले डॉर्सल रूट गैंग्लिया में जाएगा। अब अपर लिम के जो इन्फॉर्मेशन है वो फेसिकुलस क्यूनिएटस में जाता है, लोअर लिम के जो इन्फॉर्मेशन है फेसिकुलस ग्रेसिलिस में जाते हैं, ठीक है। अब ऊपर जाएंगे, इन्होंने अभी क्रॉस नहीं किया, हमने देखा था स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में उन्होंने पहले ही क्रॉस कर लिया था, इस साइड न्यूक्लियस को मिले और यहाँ क्रॉस कर लिया। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होते, वो डायरेक्ट यहाँ आते हैं और ऊपर जाते हैं। अब ऊपर 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 गए, अब मेडुला ऑब्लोंगेटा, एमओ यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा में उनके पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। यहाँ पे वो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं और यहाँ से जो फाइबर निकलते हैं वो ऐसे क्रॉस हो जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। क्रॉस होके ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ मैंने इस साइड जगह नहीं थी तो इस साइड बना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइबर क्रॉस कर रहे हैं, ये ऐसे ही चाहते हैं, क्रॉस एक ही बार करते हैं इन्फॉर्मेशन मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। ऊपर जाएगा, वापस थैलेमस के वीपीएल न्यूक्लियस को इन्फॉर्मेशन देगा और फिर जाएगा सेंसरी कॉर्टेक्स, एरिया नंबर 1 2 3, अगेन एरिया नंबर 1 2 3। सो इसको, ये सेंसरी ऑर्गन सेंसरी डिकसेशन है और वो हमारे थे मीडियल, ये भी देखो मीडियल लेमनिस्कस, मीडियल लेमनिस्कस बन रहा है ये दोनों को मिलके मीडियल लेमनिस्कस। इसका मतलब क्या क्या कैरी कर रहा है, मीडियल लेमनिस्कस हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी बना रहा था, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट मीडियल लेमनिस्कस बना रहा था, और यहाँ पे अपना जो ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स है ये भी मीडियल लेमनिस्कस बना रहा है। यानी मीडियल लेमनिस्कस ने क्या क्या कैरी किया, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से उसने क्रूड टच और प्रेशर को कैरी किया, ये मीडियल लेमनिस्कस से यहाँ पे उसने क्या क्या कैरी किया, इसने कैरी किया फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, सब कैरी किया। मतलब मीडियल लेमनिस्कस अगर डैमेज हो गया तो तुम्हारा क्रूड टच जाएगा, फाइन टच जाएगा, प्रेशर जाएगा, वाइब्रेशन जाएगा, स्टीरियोग्नोसिस, बॉडी ये कुछ भी सेंस नहीं कर पाएगी। ये है इसका क्लिनिकल कोरिलेशन। तो थैलेमस को जाएगा, थैलेमस से इन्फॉर्मेशन सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा, यही मैंने यहाँ सब लिखा है। तो ये है हमारी बॉडी की ब्यूटी, इन्फॉर्मेशन कैरी करने का। न्यूरो इज़ वेरी एक्साइटिंग। सो मीडियल लेमनिस्कस में गया और ये भी इसने एक बार क्रॉस कर दिया, यानी अगर राइट साइड कोई डैमेज है तो तुम्हारे लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, तुम्हारा लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन उसको कंट्रोल करेगा। यानी अगर यहाँ कोई ट्रैक्ट को डैमेज हो गया तो तुम्हारी राइट साइड, लेफ्ट साइड अगर कोई डैमेज हो गया तो राइट साइड ऑफ बॉडी को पता चलेगा कि लेफ्ट साइड डैमेज हुआ है। अब सेरिबेलम क्या करता है, मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला से कनेक्टेड रहता है वाया सम पेडंकल्स, जो कनेक्टिंग फाइबर्स हैं बिटवीन द मिड ब्रेन पोन्स, मेडुला एंड द सेरिबेलम, उसको हम बोलते हैं पेडंकल। द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, दिस द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, दिस द मिडल एंड दिस द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। सेरिबेलम से मिड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है वो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सेरिबेलम से पोन्स को जो कनेक्ट कर रहा है वो है, ये ब्रेन स्टेम है, तुमको पता होगा ये ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन पोन्स मेडुला, तो ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडल एंड ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इनको कनेक्ट कर रहा है। मिड ब्रेन से सेरिबेलम, पोन्स से सेरिबेलम, मेडुला से सेरिबेलम, तीन पेडंकल्स कनेक्ट कर रहे हैं तीनों को, ठीक है। अब तुम देख रहे होगे कि मिडल सेरिबेलर पेडंकल को तो ऐसे ही जाना है पोन से कनेक्ट होने के लिए, तो ये जो एरिया बनता है ना सुपीरियर और इंफीरियर के बीच, इसको ही हम फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो दिस वी कम टू द स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, सबसे सिंपल ट्रैक्ट स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है। अब हमको ये याद रखना है कि इसमें भी एक डॉर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट था, मैंने तुमको बताया था न्यूक्लियस के फॉर्म में। देखो ये है अपना डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये है वेंट्रल, पीछे है तो डॉर्सल बोलते हैं, आगे है तो वेंट्रल बोलते हैं। डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अब जो डॉर्सल, अब हमको ये याद रखना है कि जो डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है वो क्या करता है, अपने जो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन है सिर्फ और सिर्फ लोअर लिम्ब से कैरी करता है, वो मतलब ही है डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। जबकि वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट को थोड़ा ऐसे घूमना पड़ रहा है, लंबा है, तो वो अपर लिम्ब से भी सेंसेशन लेता है, लोअर लिम्ब से भी लेता है। अब जो डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है वो इन्फॉर्मेशन लेगा अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन का लोअर लिम्ब से और जाएगा अपने ये न्यूक्लियस को, कौन सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस डॉर्सलिस है, डॉर्सल कॉलम का जो न्यूक्लियस है उसको बोलेंगे न्यूक्लियस डॉर्सलिस। यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है, घूमता है, सबसे शॉर्ट ट्रैक्ट, लाइफ इसकी मेंटोस जिंदगी है। ये स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट का जो है डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट को जाता है, ऊपर जाता है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल में घुस जाता है सेरिबेलम में इन्फॉर्मेशन देने।
कि जॉइंट ये स्पेस में है तुम्हारा लोअर लिम्ब का। जो वेंट्रल स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट है उसको कोई काम धंधा नहीं है लाइफ में, एकदम वेग पाथ फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, इसने एक भी बार ये मिड लाइन क्रॉस नहीं किया ये डॉर्सल स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट ने, लेकिन जो वेंट्रल स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट है वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों से, जा रहा है, क्रॉस कर रहा है मिड लाइन, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके इसने फिर से क्रॉस किया, मतलब यहाँ तो एक बार क्रॉस किया ही था लेकिन ये फिर से क्रॉस किया, तो सेम साइड हो गया ना। तो यानी अगर तुम्हारे राइट साइड में ब्रेन में इंजरी है तो तुम्हारे राइट साइड का अनकॉन्शियस प्रोप्रोसेप्शन लॉस हो जाएगा, यानी तुमको नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी राइट साइड के लेग्स की लोकेशन कहाँ है बॉडी में, नहीं पता चलेगा। तो ये इप्सिलेटरल लॉस है, कॉन्ट्रालेटरल नहीं है। सो आता है लोअर, मैं रिपीट करता हूँ, लोअर लिम्ब से इन्फॉर्मेशन आता है, लोअर लिम्ब से जाता है डॉर्सल स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट में सेरिबेलम को इन्फॉर्मेशन, ये सेरिबेलम है। अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों से आता है, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट में आता है, ऊपर जाता है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में घुसता है इन्फॉर्मेशन। अब जो वेंट्रल स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट है वो ऑपोजिट सेरिबेलम को भी सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ताकि दोनों सेरिबेलम को पता चले कि बॉडी में जॉइंट लोकेशन कहाँ है, और दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं ऐसे कि दोनों साइड मैच करते हैं कि हाँ इस जगह पे जॉइंट है, इस जगह पे मूवमेंट हो रही है बॉडी में। सो दिस वॉज अबाउट द स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट्स, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये एक एक्सेसरी स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट है जिसको बोलते हैं क्यूनियोसेरिबुलर ट्रैक्ट। ये अपर लिम्ब से सेंसेशन लेता है, फेसिकुलस क्यूनिएटस में जाता है, यहाँ पे एक मेडुला, ये मेडुला का लेवल है, वहाँ पे एक्सरी क्यूनिएट न्यूक्लियस होता है, सीधा इन्फॉर्मेशन देता है सेरिबेलम को। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट ट्रैक्ट, दिस क्यूनियोसेरिबुलर ट्रैक्ट। क्यूनियो मतलब फेसिकुलस क्यूनिएटस में जाता है, एक्सरी क्यूनिएट न्यूक्लियस को इन्फॉर्मेशन देता है मेडुला में, और सेम साइड में घुस जाता है सेरिबेलम में। So this was about the ascending tract that we learnt in the second study session. So we read today about tabes dorsalis. Tabes dorsalis is the syphilitic degeneration of the posterior column as well as posterior nerve root. So यहाँ पे fasciculus gracilis और fasciculus cuneatus दोनों जाता है। So what happens that ये posterior column effect हुआ, तो posterior column का जो function है, अब conscious proprioception, fine touch, vibration, ये है posterior column का function। So जो conscious proprioception है, it helps us to know that you are standing or sitting while you are actually opening your eyes, means consciously you know that what you are doing while opening your eyes. But in patient of tabes dorsalis, when they close their eyes, they do not have the sense of what they are doing, so they will fall. But why am I telling you this? I am telling you this because just yesterday in the ward I saw a patient, not of tabes dorsalis, but such patients who have lost their conscious proprioception will fall on the affected side when they close their eyes. We read this in the book and then we see this in the ward. So this goes to a long term memory, और अब ये मुझे ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। And this is what amazes us to study. This is how learning should be. This is what really a clinical correlation means. So I experienced this when I saw the case of this patient in the ward. We all people were completely amazed that इतना typical Romberg sign हमको देखने मिल रहा है। So एक बात और क्लियर होती है इससे कि एम्स नागपुर का पेशेंट फ्लो बहुत एडिक्वेट है। We get to see almost like बहुत एडिक्वेट केसेस है। इफ़ यू आर क्वेश्चनिंग कि एम्स नागपुर का पेशेंट फ्लो कैसा है, डू कम हियर, डू चेक द ओपीडी, हमेशा भरी हुई रहती है, डू चेक द ओटीज, हमेशा भरी हुई रहती है। पेशेंट्स को बहुत वेट करना पड़ता है यहाँ, ये भी एक उसका एडवर्स इफेक्ट है। बट पेशेंट फ्लो इज़ एडिक्वेट फॉर अस टू स्टडी एंड लर्न। सो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग केस दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू। सो सेकेंड स्टडी सेशन भी हमने कर लिया कंप्लीट पूरा लर्न के साथ। बहुत ही कम हुआ है मैं मानता हूँ, बट जितना हुआ है पक्का हुआ है। आई होप तुमको भी समझ आया होगा। बट नाउ फॉर नाउ विल मूव फॉर लंच बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ अबाउट 1:30 to 2 PM, इसलिए हम अभी पहले लंच करके आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टडी सेशन कंटिन्यू करेंगे। दिस वॉज द लास्ट थिंग दैट आई टॉट टू यू। इफ़ यू फाउंड मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा, डू कमेंट। इफ़ यू आर एन MBBS स्टूडेंट, डू कमेंट व्हाट टॉपिक डू यू वांट। दैट टॉपिक इफ आई हैव ऑलरेडी स्टडीड, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट टॉपिक इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट अ सीरीज फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स एज वेल, जो कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई कर दे और कंसेप्ट्स को ईजी बनाए, बट ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। अगर तुमको इस नोट से कुछ समझ आया और तुम चाहते हो कि मैं और समझाऊँ तुमको कुछ न्यूरो मेडिसिन के रिलेटेड या और कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड, so do comment in the comment section below. I will pick up topics that are complex. I will understand and make you understand in a very simplified manner with mnemonics and everything that simplifies it.
सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो तो तुम थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए होगे, अभी थोड़े सरप्राइज हो गए होगे कि इतना डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इट इज़ नॉट दैट NCERT। सो ये तो बस 10% था मैंने तुमको जितना पढ़ाया, पूरा न्यूरो एनाट करना है। और मैं अगर एक चीज़ पढ़ाने बैठा तो ये वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। सो आई एम नॉट डूइंग दैट एनी मोर। इफ़ यू वांट आई डू दैट इन द अपकमिंग वीडियोज़। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो अभी के लिए लंच करके आते चलो। In the next few minutes of the video, I will introduce before you the giveaway question. So are you ready for it? So let's continue the post-lunch session. अभी पढ़ने बैठने ही वाले हैं। पढ़ने के पहले I will ask you how is the जोश. Do comment in the comment section. मेरा तो फुल है, not this. So yeah, मेरा तो फुल है जोश। So हम अभी पढ़ने बैठ रहे हैं बिना किसी। So अभी हम पढ़ने बैठ रहे हैं। So I sit to study for the next study session, admiring the beautiful skies from my room window. I really love watching skies a lot. Do you also find the skies beautiful? Anyways, I will not take any further of your time. So this is the giveaway question for you. Attention! In a knee-jerk reflex, whose NCERT diagram is shown here, which is the first order neuron? I have clearly explained it in the concepts that I have taught you in the later part of the video itself. There I have clearly explained what is the first order neuron. You have to answer what is the first order neuron of the knee jerk reflex. To participate in the giveaway, comment the correct answer with your Telegram ID and also mention one part of the video that you liked the most. Then cite the reason why you want these notes and modules. The one with the best answer to all the above will be selected and contacted by me for the giveaway for free. So finally I am done with न्यूरो एनाटमी मैंने पूरा पढ़ लिया है। और अब जैसे कि आप देख सकते हो पीछे विंडो में बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। सो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि जितना पढ़ा उसको क्लिनिकली कोरिलेट करने के लिए आई विल गो टू द क्लिनिक्स। आई विल कॉल वन ऑफ माई फ्रेंड। आई विल टेक हिस्ट्री ऑफ दैट पेशेंट, नो हिज हिस्ट्री एंड टॉक विथ हिम to know more about what I studied today. This is how clinical correlation happens. So till I go, enjoy the beautiful view and we will leave for the clinics for now. It was evening already, but where are you going? Don't leave the video yet. I have an interesting clinical video of the patient that we saw in the ward where I am actually eliciting the knee jerk reflex, which will really leave you amazed. So watch it till the end. So अभी हमने हमारा वाइट कोट पहन लिया है, विच इज़ आवर यूनिफॉर्म, आवर प्राइड, एवरीथिंग। सो अब वाइट कोट पहन के अब हम जा रहे हैं हिस्ट्री लेने पेशेंट की और उसकी साइंस एलिसिट करने की ट्राई करेंगे। आई विल ट्राई टू कैप्चर बाय टेकिंग हिज कंसेंट। सो हिस्ट्री लेंगे एग्जामिनेशन। मैंने अपने दोस्त श्रेयांश को कन्विंस कर लिया है, तो अब हम जा रहे हैं हिस्ट्री लेने। चले चलते हैं। तो अब श्रेयांश हो जाता है रेडी और हम चलते हैं वार्ड की तरफ। तो हम क्लिनिशियंस आ गए हैं शाम को वार्ड में, क्लिनिक्स हिस्ट्री लेने, हिस्ट्री प्लस एग्जामिनेशन। देखते हैं वार्ड में हॉस्पिटल की तरफ। And here we enter the hospital. Now I will show you the knee jerk reflex that I was talking about. This is a patient of Guillain-Barré syndrome (GBS) where the deep tendon reflexes like the knee jerk reflex are completely lost. See, there is no response. And see, this is a patient of upper motor neuron lesion जिसमें बस हाथ से टैप करने पे देखो रिस्पॉन्स। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ साइंस, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। Upper motor neuron lesion, for example syrinx formation, will lead to such hyper response of the reflex. Notice the response of the ankle even on a small tap. So wasn't that amazing to watch? After this we sanitize our hands and we go to the dinner where it was my favorite bhindi. After the dinner, Omkar comes to my room where we discuss some high-yield one-liners important for NEET PG as well as INICET. For example, we discuss topics like Wilms tumor, which is one of the most common kidney tumor in children. So what is the chromosome and the gene causing Wilms tumor? It is WLT1 and WLT2. WLT1 is present on chromosome 11p13 and WLT2 is present on chromosome 11p15. These are direct one-liner questions which are asked commonly in NEET PG and INICET. Discussing them makes us remember it for a long time. We also discuss some other one-liners which are important in urology surgery. After that, I revise all of the things that I studied during the day, and this is how the day comes to an end. After this, based on the revision that I did, I make some sticky notes and stick it on the wall.
These sticky notes are also about important high yield topics which are one liners, for example, the medial medullary syndrome, the lateral medullary syndrome, the pontocerebellar syndrome, and the pontine angle syndrome, etc. etc. So, this is how the day comes to an end, and here our study comes to an end. एक्चुअली जो आंसर था उसका, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था वीडियो में, व्हाट इज़ दैट सेंसेशन जो थैलेमस को पास नहीं करता. द आंसर इज़ ओल्फैक्टरी. ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट इज़ द ओनली ट्रैक्ट जिसके सेंसेशंस को थैलेमस से पास नहीं करना पड़ता. वो अपने सेंसेशन के मैसेज सीधा कॉर्टेक्स में भेजता है इन द ओल्फैक्टरी एरिया. अब आंखों में नींद भर गई है, सो वी आर रेडी टू स्लीप एंड वी वर नॉट एबल टू डू मेडिसिन. We only did neuro and art, revision of neuro and art. So medicine we will do later. Before clinical examination study we will do medicine, and then we will study for clinical examination. However, I looked at patient today, got to know something closely. That was the main point of the day. वही फेस रूटीन करके हम फाइनली सोने चले जाएंगे. Thank you for watching this vlog till the end. I hope you got to learn something, you enjoyed. I hope you liked it. Do share and subscribe. Chalo, bye.